Mr. Rajesh, you have mentioned pretty much about the education system we have in India. But let me first ask you a simple basic question. Why so much emphasis is given on the English language as far as the students are concerned? Because majority of the Indian students come from the backward classes, come from the societies, come from the very lower middle class. If they cannot converse in English language, they are either mocked at or looked down upon. Why is it so? Why have we given the preference to English language? If they converse in their local language or in Hindi or Hindi English, which is the common language, we just mock at them. Why is it so? Uh, Thank you, Danish. That's an excellent question. I think it has much to do with our colonial heritage, because the when the English came and they started ruling us, of course they crushed the local educational system. And then what happens in many colonized countries is that a class emerges, which are kind of the henchmen of the colonial power, and they are an imitative class. So they just mimic the ruler. They think the ruler's culture is the best. In fact, they think their own culture is useless. And slowly over the years, the colonial language becomes more and more important. However, as I mentioned in this book, all this is set to change, and it can easily change. It probably will change if we use EdTech. And I give the example that some years ago, I went to Beijing, and I had an app on my telephone, which, when I spoke to the taxi driver in English, it was translated immediately into the Chinese language. He could follow me. I was speaking in English, and within 2 minutes, it was being translated. So, this gap which exists, this so called gap, with the use of EdTech, we may have 26 languages in the country, but a lecture which is delivered in English, which is supposed to be better, can easily be translated into Telugu, Tamil, using the EdTech, But and vice versa. Vice Mr. versa. Rajesh, here is the problem. Here is the irony which we are living in. Your English got translated into Chinese because they are proud of this Chinese language. On the other hand, the parents scold their children, भाई आप लोग अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? We are ashamed of speaking in our local dialects. We are ashamed of speaking in either Hindi, English, Tamil, or Odi because we think that English is the only language. यहाँ पे तो इशू उस चीज का है कि we are ashamed of talking in our local language. Even if we develop the software or the applications, do you think that will provide any succor to the people? Sorry, to the I think students? I think I think so. I think so. एक गैप जो है, जो ट्रेडिशनल गैप माना जाता है अंग्रेजी मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल या वर्नैक्युलर मीडियम स्कूल में, जब आप ट्रांसलेशन इंट्रोड्यूस करेंगे कि एक टेक्नोलॉजी के थ्रू वही लेक्चर जो एक, समझ लीजिए, बेहतरीन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रहा है, वो can be transmitted to a small village in Odisha, and the translation can take place in Odia language, can take place in Punjabi, in Malayalam. This technology is there where you can now listen to a lecture not only in English, but you can listen to it in English, in Oxford accent, in BBC accent, American accent, English accent, and even Indian accent. So, in the future, when power shifts to Asia, जब इंडिया तरक्की करेगा, आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि यूरोपियन और अमेरिकन कहें कि भाई ये क्लाइंट हमारा इंडियन है, आप अंग्रेजी में बोलें लेकिन इंडियन एक्सेंट में, टू मेक देम फील कंफर्टेबल. तो इट्स ए क्वेश्चन टू address through technology, I believe. And we have in last 75 years, rather in last more than 20 years, failed to address this issue. ये बात सही है, but this is part of a broader neglect of the education system. एक प्रिंसटन के प्रोफेसर हैं अशोका मोदी, उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है, इंडिया ब्रोकन, प्रोमिसेस बिट्रेड.
तो उसमें वो कहते हैं कि ये जब से हम आज़ाद हुए हैं सिंस 1947 the education sector has been neglected, and he doesn't even spare, neither he spares Mr. Nehru nor he spares Mr. Modi. नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि भाई उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट की, लेकिन ये भी प्रोफेसर मोदी पॉइंट्स आउट कि प्राइमरी एजुकेशन हैज बीन निग्लेक्टेड फ्रॉम द स्टार्ट। और irrespective of which government, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, कोई तीसरी हो, everybody has been neglecting, nobody has been investing properly in the education system. So, controversy is there about this NEET exams? How have we failed our students, and why? What is this NEET controversy? Have we failed our students? Could we have done better? I think we could certainly do better and we have to do better. मैं जिक्र कर रहा था इस किताब में कि जब मैं कह रहा हूँ कि इंडिया फ्यूचर में आगे बढ़ सकती है प्रोवाइडेड वी टेक सर्टेन स्टेप्स, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई शायद आप इंडिया की रियलिटी को नहीं जानते, बहुत साल आप बाहर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं 3 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, जामिया में पढ़ा चुका हूँ, हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट रहा, कैंपस कॉलेज में भी स्टूडेंट रहा, तो मैं यहाँ की रियलिटी से बखूबी वाकिफ हूँ। तो ये कहना चाहूँगा कि जो करप्शन है, फॉर एग्जांपल, करप्शन तो कोई नई बात नहीं है। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, एक समय मैं एग्जामिनर था, तो मेरे घर कोई पुलिस वाले पहुंच गए कि सर आपके एक स्टूडेंट हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनका पेपर जो है आप थोड़ा, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई सेंड देम अवे, बट करप्शन है। और जो नीट का है किस्सा, उससे पहले व्यापम था, यूपी में 2 मिलियन स्टूडेंट्स, ये बार बार होता है। लेकिन जो नई बात है, नई बात यह है कि अब आक्रोश बहुत है, डेमोन्स्ट्रेशंस लोग निकालते हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं, young female students are there, there is a lot of anger and the Sir, message is being sir, sent to the government that we will not tolerate this. Mr. Rajesh, I slightly beg to differ from you on this point कि anger है, protests हो रहे हैं. If you remember early 1970s Bihar, Maharashtra, Gujarat, complete student protests थे. This is, I'm talking of 45 years back. वो fail हुआ, we achieved nothing. Do you think these 2012, 2013, although वो protest students कर रहे थे something different on some other issue, but again now 2024 we are seeing a lot of student protests. Do you think in our bureaucracy, in our setup, these student protests at the end of the day have any meaningful ending to it? I think now it's no longer a question of students, because it's the parents are furious, civil society is furious, और अब जो मिडिल क्लास की पावर है, जो आप बात ठीक कह रहे हैं कि बहुत सालों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सिचुएशन फर्क आ गई है। अब ये नेशनल एजेंडा की बात है, अब गवर्नमेंट्स हिल जाती हैं, गवर्नमेंट्स घबरा जाती हैं, पॉलिटिशियंस घबरा जाते हैं, सिचुएशन थोड़ी फर्क आ गई है। अब ये टॉलरेट नहीं होगा आगे से। आई थिंक वी हैव रीच्ड अ टिपिंग पॉइंट। आई एम मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट। Sir, as you have also mentioned in your book too, that you have compared rather education system of India with China, South Korea, and Taiwan. क्या difference है? What is the difference between their education system and our education system? हम कहते हैं कि डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, एजुकेशन पे कम है, बट इफ़ यू लुक एट दीज कंट्रीज, साउथ कोरिया, ताइवान एंड चाइना, वहाँ पे भी डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा है, बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने एजुकेशन को भी इन साथ साथ लेके चले हैं. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज डेवलप्ड कंट्रीज एंड बिटवीन अस? वेल, विद इन एशिया, क्योंकि पावर इज शिफ्टिंग, इकोनॉमिक पावर इज शिफ्टिंग, अभी कुछ स्टेटिस्टिक्स आए थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जो परसेंटेज है, एशिया की जो कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा है. तो एज पावर इज शिफ्टिंग, मैं समझता हूँ कि चाइना और हमारे में, चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है. दे आर इन्वेस्टिंग मच मोर, दे आर ऑल्सो मच रिचर. So if they invest a high percentage of their GDP, it translates into so many times.
लेकिन हमें भी एक चाइना पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो है, एंड दैट वी शुड कंटिन्यू विद दैट, एंड दैट इज दैट चाइना जो है, चाइना इज नॉट अ फ्री सोसाइटी। चाइना में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप हिस्ट्री चाइना में नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? बिकॉज हिस्ट्री तो वो समझते हैं सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री है, और कोई हिस्ट्री नहीं है। ना इस्लामिक हिस्ट्री है, ना हिंदू हिस्ट्री है, ना बुद्धिस्ट हिस्ट्री है। ये सब फ्यूडल रेलिक्स हैं विच शुड बी अबॉलिश्ड। आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इवन अगर कोरोना की साइंटिफिक चीजें हैं, जब तक आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, चाइना में पॉलिटिकल साइंस आप नहीं पढ़ा सकते। पॉलिटिकल साइंस आप इसलिए नहीं पढ़ा सकते कि वहां पे तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि चाइना से भी बेहतरीन पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। बट फॉर चाइना, द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिस्टम्स इज द कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ चाइना। तो वहाँ की जो सोशल साइंसेज विच आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, मैं नादिर गाडरेज की अभी एक स्पीच सुन रहा था, जिसमें वो कहते हैं कि भाई सोशल साइंसेज को आप कम मत समझिए। हाँ, साइंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सोशल साइंसेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और सोशल साइंसेज में चाइना इंडिया को टक्कर नहीं दे पाएगा जब तक कि वो सिस्टम ही ना बदल जाए। Mr. Rajesh, this is example of just one subject, but looking at overall education system, China, Taiwan, and South Korea are much way ahead of us. Why is it so? There are many reasons. I don't think China is ahead. And ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है दानिश, मैं इसमें डिफर करूंगा। सोशल साइंसेज जो हैं, यू कुड से जस्ट लाइक दी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है, वो सोशल साइंसेज भी बहुत फैली हुई हैं। देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। और फ्रीडम जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आप क्वेश्चन करें, and I feel that this is very important that we have the freedom to question, and we must continue to have the freedom to question. अभी कोविड में एक सरकारी पॉलिसी को चैलेंज किया था चाइना में किसी ने, क्या हुआ? ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स। तो अब फिर आप साइंस को भी नहीं चैलेंज कर सकते। ये बात है कि कोपरनिकस ने जब कहा था, या ये चीजें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी Please, कोरिया और ताइवान छोटे मुल्क हैं, दे आर वेरी गुड। सिंगापुर भी बहुत अच्छा है। तो उनका एक ग्लोबल इम्पैक्ट उस स्तर पे नहीं हो सकता जो चाइना but और इंडिया का but है। do these small countries have a better education system than us? I believe so. I believe that they are overall they're more developed societies, far richer societies. And if you see Korea and you see Singapore in the ranking, they have a much higher, given their population. If you compare even with China, they have far more institutions who are ranked higher. So there is a need that we must understand their education system and we can replicate that in the country. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी मैं किताब में भी जिक्र किया है कि जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, कि हम एक दूसरे से सीखें। हम वेस्ट की भी जो बेहतरीन पॉलिसीज हैं, जो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को एम्फोसिस देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि जो प्रोफेसर बोल रहा है, अगर आप चैलेंज करेंगे, जैसे आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं दानिश, इट्स वेरी गुड, इट्स अ क्रिटिकल डिस्कशन। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड में, उन्होंने मेरे एक मित्र को कहा, आपने ऐसे लिखा है, उसमें तो आपने मेरे ही व्यूज रिफ्लेक्ट कर दिए हैं, आई वांट टू नो योर व्यूज। सो यहाँ जो चमचागिरी है, जो चापलूसी है, द लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बदलना पड़ेगा हमें। और हम सीख सकते हैं, कोरिया से भी सीख सकते हैं, ताइवान से भी सीख सकते हैं। So there is a need to upgrade our education system, which the successive governments in last 70 to 75 years have failed to do so. कोठारी कमीशन जी 1966 में उन्होंने कहा था कि 6% ऑफ जीडीपी तो आपको लागत लगानी ही पड़ेगी। 2% प्राइमरी एजुकेशन पे, 2% सेकेंडरी एजुकेशन पे, 2% हायर एजुकेशन पे। पर वो जो रिकमेंडेशन, बेहतरीन रिकमेंडेशन था। अब आप देखिए ब्राजील को, ब्राजील जो है इज इन्वेस्टिंग 6%। साउथ अफ्रीका को देखो, साउथ अफ्रीका इज इन्वेस्टिंग 6.6%। Sir, व्हाई enlighten कांट वी me. इंक्रीज? Sir, enlighten me. हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम? अभी अभी वर्ल्ड बैंक के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं,
उसमें मोदी जी ने प्रॉमिस किया था 2014 में कि वो बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। वर्ल्ड बैंक के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसके हिसाब से 4.5 इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। So we must reach 6.6 now or 7. आइडियली यस, बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, एशिया की पावर बनेंगे, दुनिया की पावर बनेंगे, भाई एजुकेशन इज द की। देयर आर अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन एक पूंजी है। विदाउट फ्लावरिंग एज एन एजुकेशन पावर, we will not flower as a super power. Soft power will not flower. Sir, a little digression from your book. I must ask you this. How do you see last 10 years as far as our education system is concerned? Has it gone from bad to worse or things have improved? देखिए, मैं जब यूएन में काम करता था तो मैं इंडिया वापस आता था और मुझे कई दफ़ा लगता था कि हम पीछे जा रहे हैं और कई दफ़ा लगता था हम आगे जा रहे हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिससे मेरे को इनकरेजमेंट मिली। कुछ समय पहले मेरी जो मेड है करुणा, वो जब आई थी हमारे यहाँ काम करने 15 साल पहले, तो फाइनेंशियली उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। पर कुछ समय पहले उसने कहा कि भैया जी थोड़ा लोन मिल जाएगा, एक मोबाइल खरीदना है मेरे को अपने बेटे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पर मोबाइल वैसे स्मार्टफोन खरीद रहा है, किस वजह से खरीद रहा है? व्हाट्सएपिंग करनी है, फेसबुकिंग करनी है, इंस्टाग्रामिंग करनी है, या कोई और कारण है? तो उसने कहा कि नहीं, कुछ एड ऐप्स हैं, एजुकेशन ऐप्स हैं, वो सीखना चाहता है तो वो स्मार्टफोन पे सीखेगा, तो इसलिए मैं खरीदना चाहती हूँ। अब फर्क इतना आ गया है कि जो हमारी मेड है वो भी, उसके बच्चे भी ट्यूशन ले रहे हैं। उसकी लड़की ने अभी स्कूलिंग खत्म की है और कॉलेज में ज्वाइन किया है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने है, इन द सेंस ऑफ नीट, इन द सेंस दैट these scams keep on taking place, corruption is still endemic, those problems are there. वो Which, mixed bag. and which we need to address. Let's move on, and coming back to a book, you have mentioned in your book that we lack proper researchers and good teachers. Why is it so? Even after 75 years, we are lacking in a good research. देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में एक कहावत है जो बहुत मशहूर है। इट्स अ 3 वर्ड कहावत, अंग्रेजी की कहावत है, पब्लिश और पेरिश। पब्लिश और पेरिश का मतलब है यूनिवर्सिटी में अगर आप रिसर्च नहीं छापेंगे तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मैं जब पढ़ता था, अब शायद स्थिति का मैं नहीं कह सकता, तो लोग, जो टीचर आता था क्लासरूम में, वो 10 साल पुराने नोट ला रहा था। उसने पिछले 20 साल में कोई नई चीज नहीं पढ़ी थी। वही पुरानी चीजें वो सिखा रहा था और स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स ले रहे थे। इट वाज सच ए डल टीचिंग, इट वाज सच ए तो रिसर्च में जब तक एम्फेसिस नहीं देंगे, जब तक आप कोलैबोरेटिव रिसर्च नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल चाइना का आपने जिक्र किया, चाइना इज डूइंग वेरी वेल इन साइंटिफिक रिसर्च, मैं मानता हूं आपकी बात। चाइना के कुछ ऐसे भी हैं लोग जो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए हैं, एक आध को So the नोबेल मिला China भी। example is given in your book. That's where I picked it from. हाँ, correct, correct. So China, but China is also doing well because they are collaborating with the elite overseas scientific institutions. वहाँ से क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। आपको मैं एग्जांपल दूं, जब मैं हार्वर्ड में पढ़ रहा था तो हमारे पास हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कोई आया पढ़ाने, हमारे पास हार्वर्ड लॉ कॉलेज से पढ़ाने कोई आया। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आप समझेंगे सिर्फ बिजनेस टीचर्स होंगे, ऐसा नहीं है, वहाँ हिस्टोरियन भी है, वो हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ाते हैं। क्योंकि नॉलेज जो है वो एक चीज है, आप उसको डिवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, लेकिन असल में जो नॉलेज है इट इज जस्ट वन। सो वी शुड encourage क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कोलैबोरेशन, रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So before I move on to last question, I must ask you, education system South India में क्यों better है as compared to North India? Why is it so? Why is this government same रहती है central में
But why is it always that the education system down south is much, much more better than what we have seen in the north? देखिए, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पॉसिबली मैनी फैक्टर्स। कुछ सालों से ये भी कह रहे हैं कि साउथ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो लगता है कि एक अलग दुनिया में चल रही है और नॉर्थ की डेवलपमेंट एक अलग दुनिया में चल रही है। नॉर्थ की प्रोग्रेस हो नहीं रही, नॉर्थ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बल्कि साउथ की स्टेट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमें कम कंट्रीब्यूट कर रहे हो फ्रॉम द यूनियन बजट। इंस्टेड ऑफ रिवॉर्डिंग अस फॉर द प्रोग्रेस, यू आर गिविंग ऑल द मनी टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। तो नॉर्दर्न स्टेट्स का आप ठीक कह रहे हैं, एजुकेशन में भी पीछे हैं, बाकी चीजों में भी पीछे हैं। आई सपोज एजुकेशन इज अ फंक्शन ऑफ द लैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज टेकिंग प्लेस in the north compared to the south. Also south, if you see, the southerners are going overseas as coders, as computer scientists. They are also doing better than the north. So we should learn north और south में भी synergy होनी चाहिए। ये नहीं कि सब states अपने में ही रहें। So my last question before we wind up this small interesting discussion on education, you being an educationist, you being an education expert, how do you see Delhi government, Aam Aadmi Party government, Kejriwal's government, the policies he had for the schools, because he is being getting acknowledgement from across the board, across the society, across the civil society members, of improving the quality education as far as Delhi is concerned. Can we replicate Kejriwal's school formula in the rest of the country? I think that I'm not very sure about the data because मैंने भी वो रिपोर्ट्स देखी हैं। एक आध स्कूल मैंने देखा है जो बहुत शानदार था। It was like a 5-star hotel, better than the private schools. लेकिन वो सिचुएशन कितनी व्यापक थी, कितना फैला हुआ था, I am not sure, but it is something definitely that needs examination. And सरकार के पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन आप देखो अगर ऑल ओवर द कंट्री स्कूल्स के बाउंड्री वॉल्स नहीं बने, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, वो कैसे पढ़ाई करेंगे अगर टॉयलेट नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, टीचर एब्सेंटीइज्म चल रहा है, टीचर्स छत टूट रही है। अभी आप देखें बारिश शुरू हो रही है तो गांव में स्कूलों की छतें गिर रही होंगी, कोई रिपेयर करने वाला नहीं होगा। So as you rightly said that government do have the money, and we do hope that they put this at least small amount of this money into the education system. Pleasure talking to you, sir. Thank you very much. And let me hold your book once more so that it reaches maximum people and audience. They can buy, read, and understand about the education system of India. Thank you, Mr. Talwar, for talking. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.